Hi, Jayalalitha. Good afternoon. Hi, Jitendra. सुबह के क्लास में कहाँ थे सब? What happened in the morning class today? क्या हुआ था आज? There were just 3 to 4 students today. So it was subah wala session was like I just came and started talking about the answer. 5 minutes before 10. कोई बात नहीं, पोर्टल में नहीं था, नहीं, there were just 3 students, so I have already discussed the answers of paper the DAW of 2, which was कोई था नहीं, तो it just I went ahead and just discussed the answers. That's it. It was like very monotonous for me as well. Suraj, हाँ बताइए ना आप, what's your question? In the morning also said you have query. बता दीजिए. The recorded. हाँ हाँ, मैंने it's a very straightforward जहाँ पे मैंने just question और answer किया है. I think it is just about 1 hour or something that I've finished the whole discussion. Because when you don't have that feedback coming in, ना उसमें it doesn't feel as if you are, teaching or वो नहीं आता है, वो buzz नहीं आता है मेरे को. तो what happens is that I just go straight forward and just kind of wrap it up. So I'll just wait for 1 more minute before everybody kind of, और भी कोई अगर है जो regular है वो आ जाए. Ma'am, I don't clear the prelim, okay? So the mentor is busy and I have many problems, so I have to solve this. How can I solve this? आपने प्रीलिम क्लियर नहीं किया है सूरज. दैट्स व्हाट यू आर सेइंग. आपने प्रीलिम क्लियर नहीं किया है और मेंटर बिजी है, ये आपका दिक्कत है. तो यार ये पर्टिकुलर कोर्स तब आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग कोर्स है फॉर जो मेंस लिखने वाले हैं. हाँ, तो अगर आपने क्लियर नहीं किया है तो मेंस आंसर राइटिंग में आओगे तो कंफ्यूजन ही होने वाला है. हाय, गुड आफ्टरनून मोनिका. तो ये पर्टिकुलर जो कोर्स है सक्सेस इन मेंस या एमआरपी इन रेसिडेंशियल प्रोग्राम जो है, उसके लिए ये आपके लिए सूटेबल नहीं है. हाय सैनी. अगर मेंटर बिजी है तो एक बार सपोर्ट टीम को मेल करो. नहीं तो आपको देखो व्हाट यू यार, ऑब्वियस बात है, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आपको अगले बार देना पड़ेगा. या आप अभी आई थिंक स्टेट पीसीएस काफी सारे आ रहे हैं, तो स्टेट पीसीएस में आप अप्लाई करो. तो वैसे ऑप्शंस हैं आपके पास, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये पर्टिकुलर कोर्स आपके लिए तब कोई भी एंड रिजल्ट नहीं लेके आएगा. तो सूरज, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप कोई सपोर्ट को मेल करो. कोई नहीं, मतलब सपोर्ट को मेल करो या मेंटर से बात करो. उसी से सोल्यूशन आ सकता है. एंड द होल आइडिया इज क्या, नहीं हुआ कोई बात नहीं है, यू शुड लुक एट अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स. अभी आ रहा है आई थिंक बिहार का आ रहा है या यूपीपीएससी का आ रहा है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर करो ढंग से. उसके बाद अगर आपको फिर से प्रीलिम्स देने का वो आता है, यू वांट टू स्टिल गिव वन मोर अटेम्प्ट, वो अलग बात है. उसके लिए आपको फिर से प्रिपरेशन करना पड़ेगा. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरा यही सजेशन रहेगा, या पहला सपोर्ट, मेंटर, तीसरा आपका स्टेट पीसीएस के लिए अप्लाई करो. हाय श्री प्रभा, गुड आफ्टरनून.
Chalo. So I have discussed the DAW2. Honestly speaking, it is just a question answer. Basically, I have done this. सारे क्वेश्चन आंसर्स के मैंने जो भी स्ट्रक्चर्स है मैंने आपको बता दिया है. अब what I wanted to do today, that is my last class, was that I wanted to talk about certain combinations of international relations and internal security. ठीक है. So we have been talking about a lot of things like UAVs and Bangladesh protests and all of that, refugees and everything. But I also wanted to just pinpoint कि internationally भी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं जिसका impact आपको internal security के portion में भी दिखेगा. ठीक है. So the biggest question, idea or the biggest topic that we can talk about right now is when moment you talk about terrorism, we have talked about Pakistan ka state sponsored terrorism. We have also talked about the internal left wing extremism and all of that. But यहाँ पे एक element जो Hamas का है, and I have said that don't call Hamas a terrorist organization, Palestinian outfit बोलना सही रहेगा. But Hamas का attack on Israel was or could be a potential question in the sense, मैं question को frame कर रही हूँ ताकि आप लोगों को एक mental जो mind map बोलते हैं उसको आ जाए. So let me put this question this way. Attack on Israel by Hamas has indicated that such kind of terror attacks can happen in the most advanced defense countries in the world. In this light, do you think India is prepared for cross-border terrorism? Or do you think India is prepared for international terrorism or something related to terrorism? So basically what I'm trying to point out is कि हमास का जो अटैक है उसके बेसिस पे इंडिया का प्रिपरेशन पे क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. So whenever you are trying to prepare your notes and whatever you are notes बना रहे हो या आप माइंड मैप बना रहे हो या सिर्फ पॉइंटर्स लिख रहे हो, up to you, उसमें एक बार इस थॉट प्रोसेस को भी just jot it down. The other thing that I wanted to bring to your attention was कि यार एक टाइम था जब इराक वॉर के समय पे प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज का काफी बज था. लास्ट ईयर भी वैगनर ग्रुप के वजह से प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज पीएमसीज पे भी बज हुआ था बिकॉज ऑफ द वैगनर ग्रुप रिबेलियन दैट हैपेंड. सो देयर कुड बी अ क्वेश्चन अगेन दैट द changing nature of warfare in recent times means that there is a rise in the private military companies. In this light, analyze the ongoing conflicts in the world or analyze the impact of these private companies on India's something security or whatever you want to add here. So basically again मैं just एक random question form कर रही हूँ. Basically talking about कि इनका रोल क्या है और क्या इंडिया पीएमसी को एक्सेप्ट करता है. तो हमारे यहाँ पे पीएमसीज आर नॉट अलाउड. इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज. ठीक है. इंडिया डज नॉट ओनली एक्सेप्ट, वी डू नॉट इवन प्रोमोट द आइडिया. हमारे यहाँ पे स्पेशल फोर्सेस है, you have para forces and all of that, but we do not have private military companies like Russia has. So there is that potential that PMC पे अगर question आता है, it could ask you about India. ठीक है? It could ask you about India as well. The other thing, that other topic that came to my mind as part of what was there last year was the ISIS Khorasan. Is ISIS coming back? क्या ISIS वापस आ रहा है? So that is also a tentative. So I was reading this
बुक ऑन इंटरनल सिक्योरिटी, ये आज के दिन में मार्केट में आया हुआ है, ग्रीन कलर की किताब है. आई थिंक इट इज रिटन बाय सम लेडी विद रजनी और समथिंग. नई किताब है, मार्केट में आई हुई थी, तो आई वांटेड टू सी व्हाट इज बीइंग टॉट इन द मार्केट. तो उसमें उस किताब में एक आर्टिकल एक चैप्टर है ऑन द रिटर्न ऑफ old models of terrorism. तो न्यू फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म एंड ओल्ड फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म का एक आर्गुमेंट दिया है. तो वहां पे शी हैज सेड दैट आईसिस खुरासान इज अ रिटर्न ऑफ द ओल्ड फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म. ठीक है, तो दैट इज अगेन समथिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड कि आईसिस खुरासान है क्या, एंड मॉस्को में क्या हुआ है, इज देयर एक्चुअली अ रिटर्न ऑफ आईसिस, एंड व्हाट शुड इंडिया डू टू प्रिवेंट a repeat of what had happened. तो यहाँ पे please do not write about the Kerala files. Do not write about the number of people who went and joined ISIS. वो सब नहीं लिखना है. But हाँ, India has to proactively work towards de-radicalization. ये आपको लिखना पड़ेगा. Right? Social media का spread और बढ़ चुका है. तो ISIS के लिए अगर ISIS फिर से वो recruitment करता है, it will be far easier for ISIS. But India has to come up with more mechanisms or more measures for de-radicalization and to check the spread of social media manipulation जो होता है. ठीक है, तो आईसिस खुरासान पे एक क्वेश्चन आ सकता है. द नेक्स्ट थिंग दैट आई वाज अगेन रीडिंग में मेरे को जो आया कि प्रॉक्सी वॉर, whenever we are talking about the word proxy war, प्रॉक्सी वॉर का मतलब ही है कि आज के दिन नॉन स्टेट एक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होने लगा है. ठीक है, नॉन स्टेट एक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये होता है कि जब स्टेट ट्रेडिशनल मेजर्स यूज करती हैं, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा. तो यू वुड हैव टू थिंक ऑफ इनोवेटिव आइडियाज. बट इफ यू टेक अ लुक एट दी रिक्वायर्ड मेजर्स, तो इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने सेंटर्स बनाए हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग का, to work together के special cells बनाए हैं, and all of this was what have India done. But you should come up with some unique suggestions जो आप way forward में डाल सकते हो to fight against non-state actors, right? So something that you could argue that कि अरे यार India could do this to fight against the non-state actors or to stop terrorism, या proxy wars, या fake currency, जो भी आप you're talking about something that is being done outside the state parameter, उसको कैसे आप टैकल करोगे, that is something you can come up with a unique solution जो आप way forward में लिखोगे. Now मैंने दोनों सब्जेक्ट्स कवर किए हैं, आई विल डिस्कस दी DAW 3 एज वेल. बट मैं एक आज बिफोर यू ऑल काइंड ऑफ zonk off, आई वांट टू जस्ट कोलैप्स फ्यू थिंग्स एंड ब्रिंग इट राइट, मैंने जस्ट काइंड ऑफ ब्रिंग इट ऑल टुगेदर राइट नाउ. तो IR मैंने करवाया है. जो अगर मैं IR की बात करूं यार, IR में देयर आर 3 kinds of questions that can come. India's neighborhood, India and its organizations, global organizations, regional global organizations, and the third is India and the extended neighborhood. ठीक है, इन तीनों concepts में एक चीज हमेशा याद रखना है, जब आप कोई भी आंसर लिख रहे हो 3 से 4 पैराज होने चाहिए. ठीक है, 3 to 4 पैराज is a must. Intro. तो अभी तक you must have seen that what I do is I read the question 2 times. So मेरे पास I don't know what content you guys get. मुझे नहीं पता है आपके पास क्या content आता है. मेरे पास content आता है question, जो वो square वाला question आता है, और उसके साथ साथ आंसर के की पॉइंट्स दिए रहते हैं. ठीक है, तो I don't refer to the key points. I just read the question with you and try to solve the question by myself, so that I can address the demand of the question. ठीक है, तो that is how I've been trying to do the DAWs with you. In that case, you would have seen कि जब मैं question पढ़ती हूँ, question को 2 बार पढ़ने के बाद मैं demand को समझने की कोशिश करती हूँ कि what has been exactly asked. From where I found the question,
आपके पास सारे ये दिए होंगे पोर्टल में दीपक, ये सारे क्वेश्चंस आपके पोर्टल में होंगे। पोर्टल में अपलोडेड नहीं है अभी भी। आज तो DAW3 का ये था, इंटरनल सिक्योरिटी DAW3 का था। ओके, मैं फिर से एक बार रिमाइंडर डाल देती हूँ। मैं फिर से दे देती हूँ, या एक काम करो, मैं ये आई हैव पुट द क्वेश्चंस हियर। तो ये DAW2 के क्वेश्चंस हैं जो मैंने सुबह डिस्कस किए थे, ये जो DAW2 के क्वेश्चंस हैं, एंड अब मैं DAW3 के क्वेश्चंस करने वाली हूँ, बट ये आपको मिल जाएंगे अगर अभी नहीं हुआ है। अच्छा, IR का हो चुका है, IS का हो रहा है आज। IR का हैव यू गॉट श्री प्रभा, इंटरनेशनल रिलेशंस के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं क्या आपके पास? Have you got the IR questions? तीनों DAWs आ गए हैं आपके पास IR के। तीन ओके, मैं एक बार पूछ लेती हूँ इंटरनल सिक्योरिटी के। 3 DAWs have come. So internal security आज नहीं होगा, वो कल तक सारे आ जाएंगे आपके पास। So end of the day tomorrow internal security will be uploaded. हाँ, the same thing that you guys get is something I also have, that is the questions and the model answer. I think IR के all 3 would have been given to you, and internal security will be done by tomorrow. He's saying कि इंटरनल सिक्योरिटी आज रात या कल तक हो जाएगा, ठीक है? तो दैट these questions will be done. ठीक है, ओके। तो इंटरनल सिक्योरिटी दैट मीन्स कि जो मेरे साथ आप डिस्कस कर रहे हो तो ठीक है, एक बार दिमाग में रख लेना, जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे DAW के तब आप उसको एक बार फिर से सॉल्व कर लेना। टाइमिंग अभी टाइमिंग की बात है, ठीक है? अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेपर खत्म करना है, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो पेपर आने से उसको जस्ट मॉडल आंसर पढ़ना मत, ट्राई टू सॉल्व इट, ट्राई टू टाइम योरसेल्फ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। टाइमिंग इज द की राइट नाउ, ठीक है? ओके, तो IR की अगर मैं बात करूं, और मैं दोनों कंपेयर कर रही हूं अभी, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन में जो मेरा ग्रैंड थीम है, जो मेरा फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे कोई क्वेश्चन उठाया, द इंटरपोल इज मैंडेटेड, तो यहाँ पे इंटरपोल को लेके बात की गई है, ये मेरा थीम है। उसके बाद क्या पूछा गया है, ऑर्गेनाइज कराइए मैंने, ये वो मैं बाद में आऊंगी। मैं पहले थीम को पकड़ूंगी क्या है, और उसी से मैं अपना इंट्रोडक्शन लिख लूंगी, ताकि आई कैन स्टार्ट ऑफ द आंसर। इंट्रोडक्शन के बाद मेरा जो सेकेंड पैरा आएगा, वो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट को, जो क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसको सब्सटैंशिएट करेगा, ठीक है? जो मेरा थर्ड पैरा है, वो एक्चुअली में जो क्वेश्चन का मेन क्रक्स है, उसको सॉल्व करेगा। एनीथिंग दैट इज देयर इन द थर्ड पैरा विल बी द मेन कंटेंट ऑफ दैट आंसर। तो इसको आप बेसिकली मेन कंटेंट की तरह ट्रीट करोगे। एंड फाइनली जो आपका फोर्थ पैरा होगा, वो आपका अगर आप देखोगे, इट इज गोइंग टू बी व्हाट, ईदर योर वे फॉरवर्ड, एक वे फॉरवर्ड होगा, या आपका समरी होगा, जहां पे आप यहाँ पे क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, आप ये भी कह सकते हो देयर आर सम मिसिंग स्पॉट्स, या आप ये भी कह सकते हो कि भाई इंडिया शुड डू दिस एंड दैट फर्दर। जो भी कहना है, आपको फोर्थ में अपना पॉइंट डाल देना है, ठीक है? ये आपका फ्लो रहेगा फॉर योर IR क्वेश्चन, चाहे वो 10 मार्कर हो या 15 मार्कर हो। 15 मार्कर में और एक पैरा ऐड कर सकते हो, पॉइंटर ज्यादा कर सकते हो, यही है ट्रिक। हमेशा अंडरलाइन करना जरूरी है और पॉइंट्स में लिखना जरूरी है। ऑप्शनल में पॉइंट्स नहीं चलता है, GS में चलता है,
ठीक है, ऑप्शनल में अगर आप पॉइंटर्स लिख रहे हो तो अवॉइड करोगे, वहां पे इतना पॉइंटर्स का ये नहीं चलता है, बट हाँ जीएस में पॉइंट्स का सिस्टम चलता है. सो दैट इज वेयर यू शुड ऑल्सो काइंड ऑफ कैपिटलाइज एंड राइट मोर पॉइंट्स. सबसे इंपॉर्टेंट है जब पॉइंट्स लिख रहे हो वहां पे एग्जाम्पल्स डालना जरूरी है. ठीक है, एग्जाम्पल्स डालना जरूरी है, जितना एग्जाम्पल्स डालोगे उतना बेटर है. ये तो आपका आईआर हो गया. नाउ इंटरनल सिक्योरिटी की बात करूं तो इंटरनल सिक्योरिटी में हमेशा अगर आप देखोगे क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो बहुत सिंपल होता है. इंट्रो में अगेन मेन थीम आ जाता है आपका, मेन थीम का इंट्रोडक्शन आ जाएगा. उसके बाद जो आपका सेकंड पैरा होता है जो आपका अगेन थीम के पॉइंट्स देने हैं, बट बिकॉज इट इज यूजुअली इंडिया सेंट्रिक क्वेश्चंस, यहां पे सिग्निफिकेंस ऑफ द थीम आएगा. ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ द थीम आता है. और जो थर्ड पैरा है वो इंडिया स्पेसिफिक रहता है. फोर्थ पैरा विल बी योर कंक्लूजन, जहां पे अगेन आप इसमें वे फॉरवर्ड डालोगे. ठीक है, जहां पे आप वे फॉरवर्ड डालोगे. तो मेन थीम, सिग्निफिकेंस ऑफ द थीम, इंडिया स्पेसिफिक जो आंसर करना है, एंड देन योर कंक्लूजन विच इज योर वे फॉरवर्ड. दिस इज द फ्लो यू हैव टू फॉलो इवन फॉर योर इंटरनल सिक्योरिटी के आंसर्स, चाहे वो 10 मार्कर हो या 15 मार्कर हो. अगेन एग्जाम्पल्स आर अ मस्ट. And now problem with internal security is examples जो होते हैं बहुत ही कभी कभी वेग होते हैं कि alleged ये हुआ है या alleged attack हुआ था या ये को भी वायरस का ये था, ये स्कैम. तो जो भी आपका वेग डाउट मतलब एग्जाम्पल्स है उसको भी अगर आप ढंग से यूज करोगे वो चल जाता है. इंटरनल सिक्योरिटी में उतना ग्रे जोन है इंटरनल सिक्योरिटी में, that certain kind of vague examples do work in internal security which will not work in IR. IR में आप ऐसे randomly लिख नहीं सकते हो कि हाँ हिजबुल्लाह ने अटैक किया था इजराइल पे. You have to give the exact dates and details. यहाँ पे वो नहीं जरूरत है, वो vague examples चल जाते. तो यहाँ पे you can use them but example से substantiate करोगे. ये दोनों चीजें दिमाग में स्ट्रक्चर बना के ले जाओगे. अब जो भी क्वेश्चन आएगा इसी स्ट्रक्चर के साथ आप आंसर करने की कोशिश करना. ठीक है, तो अभी जब हम इंटरनल सिक्योरिटी करेंगे आई विल जस्ट शो यू हाउ यू कैन पुट योर आंसर्स इन दिस स्ट्रक्चर. चलो सबसे पहले तो लेट्स कम डाउन टू फर्स्ट क्वेश्चन. एनालाइज द impacts of the drug menace on India's internal security. What are the institutional measures in place to combat the drug menace in India? ठीक है, analyze the impacts of the drug menace on India's internal security. What are the institutional measures in place to combat the drug menace in India? तो यहाँ पे मेरा इंट्रो में सबसे पहले क्या आएगा, ड्रग मिनेस के बारे में. ठीक है, कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन सोसाइटी में. ठीक है, आई विल फर्स्ट स्टार्ट विद द फैक्ट दैट कि भाई ड्रग मिनेस कितना बड़ा प्रॉब्लम है एंड दैट इट इज अगर कोई नंबर्स है, कोई रिपोर्ट है, यू कैन यूज ऑल ऑफ दैट कि भाई ड्रग अब्यूज का कोई रिपोर्ट अगर आपको पता है, नंबर्स अगर आपके पास कुछ है, तो आप इसको यूज करके सब्सटैंशिएट कर सकते हो कि भाई ड्रग मेनेस इज अ ह्यूज मेनेस इन इंडिया. क्यों है? क्योंकि इंडिया के नेबरहुड में ही आपका क्रेसेंट, गोल्डन क्रेसेंट है और गोल्डन ट्रायंगल भी है. गोल्डन क्रेसेंट, हाँ आदित्य मैं वही आ रही हूँ, गोल्डन क्रेसेंट इन द वेस्ट में आ जाएगा विच इज बेसिकली योर लिटिल बिट ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान, एंड यू हैव योर क्या है, हाँ गोल्डन ट्रायंगल आ जाएगा इन द ईस्टर्न साइड, म्यांमार लाओस के पास. सो दिस इज वेयर बिकॉज ऑफ दिस द menace is at both ends, so on the western side of India as well as in the northeastern side of India. Now
कोई नंबर्स अगर आपके पास है, कोई रिपोर्ट आपके पास है, तो वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो. नाउ लेट्स ट्राई टू गो फॉर द नेक्स्ट अप्रोच दैट आई टॉक्ड अबाउट. क्या है सेकेंड पैरा में? क्या करना है? ड्रग मीनेस का इंपैक्ट देना है. सो लुक एट व्हाट आई हैड टॉक्ड अबाउट, कि सिग्निफिकेंस पे बोला है मैंने. सो बेसिकली इसका इंपॉर्टेंस या इसका इम्पैक्ट, यही चीज आपको डिस्कस करना है. तो यहाँ पे भी सेकेंड पैरा में आपको इम्पैक्ट ऑफ ड्रग मीनेस पे बात करनी है. तो क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है? इफ वी टॉक अबाउट द इम्पैक्ट्स, द फर्स्ट इज द इंटरनल सिक्योरिटी पे पूछा है, ठीक है, सोसाइटी पे नहीं पूछा है ये. सो नोबडी इज आस्क्ड यू द इम्पैक्ट ऑफ ड्रग मीनेस ऑन द इंडियन सोसाइटी. इट इज आस्किंग यू द इम्पैक्ट ऑफ ड्रग मीनेस ऑन इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी. तो सबसे पहला ही आएगा कि भाई इट इज गोइंग टू फाइनेंस टेररिज्म, क्योंकि ये ब्लैक मार्केट में बिकता है. तो इट इज गोइंग टू फाइनेंस टेररिज्म. तो आपका पहला ही आ जाएगा टेररिज्म. उसके बाद आ जाएगा वेपन स्मगलिंग. ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? वेपन स्मगलिंग आ जाएगा. तो क्यों ये आ रहा है यहां से? क्योंकि वो ब्लैक मार्केट में हो रहा है. तीसरा आ जाएगा बिकॉज ऑफ द ड्रग्स more and more youth are going to be pulled towards organized crime. ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को आपको दिखेगा. एंड जितना वेपन्स फ्लो करेगा, जितना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आएगा, उतना इरोजन ऑफ स्टेट अथॉरिटी होगा. उतना इरोजन ऑफ स्टेट अथॉरिटी होगा. तो ये कुछ इंपैक्ट ऑफ ड्रग मीनेस आपको दिखेगा. एक यहाँ, बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग ऑन द इंटरनल सिक्योरिटी, तो ये आप लिख सकते हो एज 4 और 5 पॉइंट्स. बट आई विल एडवाइज कि एक और पॉइंट लिख देना कि बिकॉज वी हैव द यूथ बल्ज राइट नाउ. हमारा अभी यूथ बल्ज है, जहां पे अगर यूथ ड्रग मीनेस में इम्पैक्ट होगा, तो इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू इम्पैक्ट नॉट ओनली इंडिया सोसाइटी नॉर्म्स, बट ऑल्सो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो. I know it is not part of internal security, but I'll still ask you to touch upon this point about the youth bulge getting, जो डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हम उसको वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द ड्रग मीनेस. ड्रग मीनेस की वजह से इतने लोग who can be used for the economic workforce, वो नहीं यूज हो रहा है. तो that is the impact that is going to happen. अब थर्ड पैरा पे आते हैं. थर्ड पैरा क्या होगा? क्वेश्चन ही क्या है? इंस्टीट्यूशनल मेजर्स क्या लगे हैं इन इंडिया. तो थर्ड पैरा will be about the institutional measures. इंस्टीट्यूशनल मेजर्स क्या क्या है हमारे पास? तो सबसे पहले ही हमारा आ जाता है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोटिक सब्सटेंस एक्ट है हमारे पास. नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोटिक सब्सटेंस एक्ट है हमारे पास, जिसके अंडर पे नारकोटिक ड्रग्स का प्रॉपर लेजिस्लेशन दिया हुआ है. ठीक है, अब उसके अलावा हमारे यहाँ पे यू हैव जो इंस्टीट्यूशनल मेजर्स हैं, उसमें आता है आपका जॉइंट कोऑर्डिनेशन आएगा, जहां पे एक नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर है. नारकोटिक्स का नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर है. नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है. तीसरा क्या है? रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं अक्रॉस इंडिया. आज के दिन आपके पास रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, जिसके अंदर पे यूथ को आप रिहैबिलिटेशन के लिए भेज सकते हो. इन इंडिया उनटॉक इज नॉट राइट नाउ, राइट. उसके अलावा द नेक्स्ट थिंग यू कैन टॉक अबाउट इज वेट. उसके अलावा आप ऑफ कोर्स यू कैन टॉक अबाउट द एनसीबी, राइट. एनसीबी का आ सकता है. आदित्य, ये जो कोऑर्डिनेशन विथ यूएन का है ना, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ये चीज मैं कंक्लूजन में लिखूंगी कि भाई डोमेस्टिक मेजर्स के अलावा इंडिया ऑल्सो हैज इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स एंड इज अ सिग्नेटरी टू क्राइम्स एंड ड्रग्स एंड इवन यूनटॉक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के अगेंस्ट में भी
मेंबर्स हैं। तो ये जो इंटरनेशनल लेवल का कोऑर्डिनेशन है वो मैं कंक्लूजन में लिखूंगी रादर दैन द इंस्टीट्यूशनल मेजर्स जो कि डोमेस्टिक है। ठीक है, सो आई विल बेसिकली टॉक अबाउट इंडियाज मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच। इससे मेरा क्या होने वाला है कंक्लूजन में, मैं ये बोल रही हूँ कि इंडिया ने कई जगह पे ये स्टेप्स लिए हैं। तो सैनी का आर्ग्यूमेंट है कि वी शुड ऑल्सो हैव ड्रग फ्री इंडिया, वी ऑल्सो ऑलरेडी है ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन जिसके अंडर पे अवेयरनेस दिया जा रहा है अबाउट नॉट यूजिंग नार्कोटिक एंड साइकोटिक सब्सटेंसेस। Vipin, can it be integrated check post at border to stop smuggling? Yes, but is it institutional measures? डाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I think it is going to come under institutional measures. Yes, you can write this as well. Integrated check post at border, but इसमें एक चीज और लिखना, to stop the smuggling into India, ये लिखना जरूरी रहेगा। ठीक है, सिंपल ये लिखना कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एट बॉर्डर विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। तो इसी चीज को पुट इट फॉर टू अवॉइड योर टू स्टॉप स्मगलिंग, ये काम कर जाएगा। ठीक है, तो इन द कंक्लूजन जो मेरा फोर्थ पैरा रहेगा उसमें आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट the multi-pronged approach, which is going to be about the international level of cooperation that India has with UN regarding fighting the drug menace. ठीक है, so that is going to be my answer for this question. Next question आते हैं FMR पे। The government is planning to scrap the FMR. तो पहले ये बताओ, प्लान किया जा रहा है कि हो चुका है? Is it planning to scrap or has it been scrapped? अगर नहीं पता है तो चेक गूगल। फ्री मूवमेंट रेजीम जो है वो क्या अभी भी लागू है? I'm going to wait. Why don't you all Google and get back to me? शिवम, इस साल के फरवरी में ही है? कहां से? इस साल के फरवरी में इसको सस्पेंड कर दिया गया है। 2024 के फरवरी में इसको सस्पेंड कर दिया गया है। There is no way FMR is still there. तो अगर FMR नहीं है तो ये क्वेश्चन का रेलेवेंस नहीं रहने वाला है, बिकॉज इज प्लानिंग टू स्क्रैप वाली चीज तो है ही नहीं, इट इज लार्जली सस्पेंडेड। ठीक है, एंड ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ही हुआ है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा रिफ्रेज करते हैं। ठीक है, वी नीड टू रिफ्रेज इट, राइट? तो अगर मैं इसको रिफ्रेज करती हूँ तो मैं लिखती हूँ कि लेट्स से कि गवर्नमेंट हैज स्क्रैप्ड द एफएमआर अलोंग द म्यांमार बॉर्डर in order to ensure internal security. Has the move succeeded in stabilizing the northeastern region? अब बताओ, yes or no? क्वेश्चन ये मैंने किया है, गवर्नमेंट हैज स्क्रैप्ड द एफएमआर अलोंग द म्यांमार बॉर्डर, ठीक है, टू इंश्योर इंटरनल सिक्योरिटी। हैज द एफएमआर improved the internal security in the northeastern region of India? Now tell me yes or no.
इतना क्या सोचना है? What are you guys thinking? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एफएमआर को स्क्रैप किया, सस्पेंड किया गया था टू इंश्योर इंटरनल सिक्योरिटी। क्या इंटरनल सिक्योरिटी इंप्रूव हुआ है नॉर्थ ईस्ट में? हैज इट इंप्रूव्ड? So now विपिन और शिवम कह रहे हैं नो। नाउ देन टेल मी, लेट मी जस्ट ओपन द चैट ताकि सब आप लोग सभी पढ़ पाओ। तो ये बताओ तब, नहीं तो ये बताओ, तो एफएमआर सस्पेंड करना क्या वो सही डिसीजन था? Was it a correct decision? Okay, everybody is staring at each other. Chalo, I'll only answer it. So, FMR was free movement regime. What is FMR? FMR was between India and Myanmar, jahan pe aap up to 16 kilometers inside of either of the countries move kar pate, right? You could move 16 kilometers into Myanmar and 16 kilometers into India as well without a visa. Now, this basically was there. The FMR was there to support local trade, to support access to better healthcare, meeting families, diplomatic ties के soft power का पूरा गेम था ये, ठीक है? तो FMR इसीलिए काफी significant था at one point of time to improve the relations between India and Myanmar. Okay, and all of this was done. FMR was done as part of Act East policy, ठीक है? इंडिया के Act East policy में था। अब प्रॉब्लम क्या आया एफएमआर के साथ? सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने लगा इलीगल इमिग्रेशन का, ठीक है? इलीगल इमिग्रेशन का कौन से कम्युनिटीज आने लगे? आपका एक सेकेंड, बट रादर करेक्ट आदित्य, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट ऑन द अप्रोच। तो क्या हुआ कि एफएमआर में सबसे बड़ा जो डर हुआ वो था इलीगल इमिग्रेशन। क्यों? क्योंकि रोहिंग्यास और CHIN कम्युनिटी के लोग जैसे जैसे म्यांमार का सिविल वॉर बढ़ रहा था वो कम्युनिटी के लोग इंडिया आ रहे थे एज इलीगल माइग्रेंट्स। तो दिस वाज इंक्रीजिंग अ ह्यूज बर्डन ऑन इंडिया एज पार्ट ऑफ इलीगल माइग्रेशन, नंबर्स आर इंक्रीजिंग। दूसरा था कि बिकॉज ऑफ द एफएमआर देयर वाज अ सर्ज इन इलीगल एक्टिविटीज, जैसे कि ड्रग स्मगलिंग बिकेम टू कॉमन एंड प्लेसेस लाइक मणिपुर एज वेल एज अदर नियर बाय प्लेसेस जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थे, वहां पे ड्रग रिलेटेड केसेस बढ़ने लगा फ्रॉम 2022-2023 के जो नंबर्स हैं आपके हमारे पास। So even the drug trafficking increased due to FMR. तीसरा जो था कि भाई because of this FMR, the insurgency activities got a new tactic. आते थे इंडिया, कुछ वायलेंस होता था, दिन भाग के चले जाते थे using FMR inside Myanmar. तो because of which this became a huge nightmare for India to control. ठीक है, it became a nightmare कि कैसे किया जाए। अब एफएमआर को स्क्रैप करना सबसे आसान चीज है। कोई भी आप स्कीम स्टार्ट करते हो उसको बंद करना, आपको बस बोलना है कि यार इसको बंद कर दो, साइन कर दो और बोलो बंद कर दो, किसी और को बेनिफिशियरी मत बनाओ, दैट इज इट। बट एग्जिस्टिंग स्कीम को इंप्रूव करना वो बहुत ही टफ रहता है। एफएमआर जो था उसको भी इंप्रूव किया जा सकता था, उसमें बेटर बॉर्डर मैनेजमेंट जो सिस्टम है, दैट कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, उसको अगर हम यूज करते इट वुड हैव बीन बेटर फॉर एफएमआर को। वी कुड हैव हैड अ फ्री फ्लोइंग बट अ बेटर बॉर्डर मैनेजमेंट वुड हैव हेल्प्ड अस। दूसरा जो चीज था कि वी कुड हैव हैड फार मोर नंबर ऑफ बॉर्डर आउटपोस्ट्स,
जिसके बेसिस पे सिक्योरिटी या जो इलीगल माइग्रेशन के प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व किया जाता, बट एटलीस्ट देयर वुड हैव बीन मोर एंड मोर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, बॉर्डर हार्ट्स होता, जो सॉफ्ट पावर एलिमेंट था उसको होने देना हो सकता था। द नेक्स्ट थिंग इज दैट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, तब यार जब सिविल वॉर हो रहा था तो सिविल वॉर अभी भी हो रहा है, तो क्यों ही करना है? जब सिविल वॉर खत्म हो जाएगा तब एफएमआर फिर से स्टार्ट कर दिया जाएगा। बट द पॉइंट देन इज कि जब आप सिविल वॉर के समय पे एफएमआर रोक रहे हो, you have not been able to successfully stop the other things. आपने एफएमआर रोका था ये कह के कि हाँ भाई इलीगल ड्रग स्मगलिंग बंद होगा या इलीगल माइनॉरिटीज आना बंद होगा। क्या बंद हुआ है? नहीं हुआ है। रोहिंग्यास अभी भी इंडिया आ रहे हैं, ड्रग स्मगलिंग अभी भी हो रहा है। सो इट हैज रियली नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम दैट एफएमआर वाज सस्पेंडेड अबाउट इट। जब एफएमआर सस्पेंशन में ये फायदा नहीं हुआ है, then the problem was never FMR. The problem was that the border security was not efficient. And that border security has to be made efficient either through the, again, comprehensive integrated border security measures, or we can talk about, you can talk about more border outposts. And finally, the idea is कि यार जहाँ पे आप इंडो म्यांमार की बॉर्डर की बात कर रहे हो, the villages out there are very, very, very poor. So for them, any kind of commercial activity would be a boon. वो बहुत बड़ी चीज होगी। तो बॉर्डर हार्ट उनके लिए एक इकोनॉमिक बूम था। उसको बंद करके saying that कि नहीं बॉर्डर्स बंद कर दो, सारे एक्टिविटीज बंद कर दो, उनके पास ऑप्शन नहीं है but to go into these illegal activities to earn money. So you have to give them an opportunity so that they can earn money through different means, right? तो ये जो ग्राउंड लेवल पे इंप्रूवमेंट होना था ये तो हुआ ही नहीं है। एफएमआर सस्पेंड करके कुछ नहीं फायदा हुआ है। So if a question on FMR is coming, you should say that suspension, or you should write that suspension से एक चीज हुआ है कि हाँ there is now a proper border surveillance बढ़ गया है, but वो तो पहले भी हो सकता था। And on top of it, because of FMR being suspended, economic activities have gone down, which has pushed people to go into more illegal activities. So the problems have not been resolved with the suspension of FMR. It would be advisable, or it would be that India, it would be, what is the word? If India at an early date opens up the FMR with better border management system, it would be beneficial for both India as well as Myanmar and diplomatic ties between both of them. So this could be your conclusion to such a question. But ये वाला question तो definitely नहीं आ रहा है क्योंकि FMR scrap हो चुका है. Okay, let's come down to the next point, next question. The Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 has expanded the definition of organized crime and terrorism. ठीक है. Discuss how efforts to curb national and transnational organized crimes can stop terror funding and other conflicts that fuel instability. Okay, now ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली कहता है, ये कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता को आपको सपोर्ट करना है. You would have to do वाह about it कि भाई it is done the right thing. That is what the question is demanding from you. तो अगर मैंने वही अप्रोच यूज किया जहां पे मैंने ग्रैंड थीम पकड़ा पहले इंट्रोडक्शन में, तो भारतीय न्याय संहिता इज द फर्स्ट ग्रैंड थीम जो मैं इंट्रोडक्शन में बताऊंगी कि भाई ग्रैंड भारतीय न्याय संहिता हैज कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1st of July 2024 and it does include various types of organized crimes को recognize किया गया है, violence को recognize किया गया है, and this gives a more elaborate description of organized crimes and therefore a more detailed approach to resolve them and punish them. ठीक है, तो मैंने पहले ही भारतीय 2024 से फोर्स में आया है ना, 2023 में इसको ड्राफ्ट किया गया था, लेजिस्लेशन अप्रूव हुआ, बट फोर्स में 1 जुलाई से आया है. ठीक है. नाउ
So it is going to be 20. अच्छा क्वेश्चन में नहीं 2024 1 जुलाई 2024 से फोर्स में आया है. Okay, now next we come down to ये मेरा introduction होगा. That's how I will introduce Bharatiya Nyaya Sanhita, and I'll talk about the definition of organized crime in what has been given there. अब जो मेरा सेकंड पैरा रहेगा कि भाई किस तरीके से बीएनएस ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिफाइन किया है, क्या क्या दिया है. ठीक है, तो सबसे पहले तो बीएनएस ने जो मेजर चेंज किया है वो ये किया है कि जो पेटी क्राइम्स होती थी ना पहले, जैसे चेन स्नैचिंग और एटीएम फ्रॉड्स और ये सारी चीजें इंक्लूड की गई है. बीएनएस ने काफी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दिया है जहां पे जो पेटी क्राइम्स थे वो भी आज के दिन इंक्लूड किए गए हैं. उसके बाद आईपीसी के जो मेजर क्लॉजेस थे रिगार्डिंग मर्डर, असॉल्ट, टेररिज्म, ये सारे रिटेन किए हैं. ऐसा नहीं है कि आईपीसी पूरा का पूरा एकदम बाहर फेंक दिया गया है, ऐसा नहीं हुआ है. आईपीसी के जो मेजर क्लॉजेस थे रिगार्डिंग मर्डर, असॉल्ट और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड एवरीथिंग, टेररिज्म, ये सारी चीजें रिटेन की गई हैं बीएनएस में. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या किया गया है कि बीएनएस ने पेटी क्राइम्स किया. पहला पॉइंट पेटी क्राइम्स का, सेकेंड पॉइंट वाज रिटेंशन. थर्ड पॉइंट जो था वो ये किया है कि भाई देयर हैज बीन नाउ punishment including fines attached to various organized crimes. तो अभी जितना हमने इलेबोरेट किया है पेटी क्राइम्स को इलेबोरेट किया है, और भी चीजें जो फाइनेंशियल स्कैम्स, पॉन्जी स्कीम्स को इंक्लूड किया है, पॉन्जी स्कीम्स को इंक्लूड करने का भी फाइन लगाया है, उसका भी पनिशमेंट ऐड किया है. तो जितने क्राइम्स इंक्लूड किए हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स में उतने पेनल्टीज और फाइन्स भी दिया है. So that is where this is becoming important. Now, finally जो BNS का point जो लिखना चाहिए, because आज के दिन में ये बहुत buzz में है, is the sexual offenses against women. ठीक है, तो what it has done, why am I asking you to write this? क्योंकि ये बहुत न्यूज में है आज के दिन में, तो उसको भी अगर आप एज अ सेपरेट पॉइंट लिखते हो तो अच्छा रहेगा. तो इफ यू टॉक अबाउट द सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, तो ये आईपीसी में भी था, ऐसा कोई नहीं है कि आईपीसी में नहीं था. बट व्हाट दे हैव डन इज जो गैंग रेप के क्लॉजेस हैं उसमें चेंज करके उसको काफी स्ट्रॉन्ग बना दिया है. इट इज नाउ अ मोर नुआंस्ड description of the crime, and it has a proper definition with age given of what we are talking about when we are referring to a gang rape situation. तो इसी वजह से I am kind of putting this sexual offenses against women को एक point डाल देना यहीं पे. Okay, तो ये आपके definition को expand करने की बात आ जा रही है in the second para. थर्ड पैरा में आते हैं जो आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन है. डिस्कस हाउ एफर्ट्स टू कर्ब नेशनल एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स कैन स्टॉप टेरर फंडिंग. ठीक है, तो कैसे किया जा सकता है? एक तो आपका लीगल फ्रेमवर्क्स क्रिएट करोगे यार, जितना लीगल फ्रेमवर्क्स क्रिएट करोगे उतना बेटर होगा टू फाइट अगेंस्ट टेरर फंडिंग. ठीक है, दूसरा आपका आना चाहिए कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग किसी तरीके से बंद करो, जिसके लिए टैक्स इवेजन बंद करना पड़ेगा आपको. तो टैक्स इवेजन पे पूरी तरीके से रोक टोक लगाओ ताकि देयर इज मनी लॉन्ड्रिंग थोड़ा कम हो. एंड लास्टली यू नीड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जिसके बेसिस पे ही ये हो सकता है, क्योंकि ट्रांसनेशनल भी पूछा है, तो दैट इज वेयर योर आंसर इज गोइंग टू बी इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड. सो ये सारे एफर्ट्स आप लिख सकते हो इन योर थर्ड पैरा. एंड फाइनली कंक्लूजन में लिखोगे कि भाई बीएनएस का अगर आप देखोगे द ब्रॉडर डिस्क्रिप्शन एंड अ वाइड वैरायटी ऑफ पेनल्टीज जो उन्होंने दिया है टू टैकल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म इज one can expect it to have better results, as well as in the light of increasing crime and terrorism in the South Asian region. तो आप यहाँ पे एक होपफुल वे में आंसर एंड कर रहे हो, जहाँ पे आपने ये बताया है कि बीएनएस का
there is a huge potential for it to resolve these issues in light of increased organized crime and terrorism in the region. ठीक है, तो ऐसे करके आप आंसर को एक होपफुल वे में छोड़ सकते हो. इफ यू वांट टू गिव अ वे फॉरवर्ड, एक सजेशन देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, पर बीएनएस को क्रिटिसाइज मत करना. आप एफर्ट्स को ज्यादा लिख सकते हो. यू कैन गिव अ सजेशन देयर एज वेल कि इंटरनेशनली हम ये कर सकते हैं, बट बीएनएस को क्रिटिसाइज मत करना, कोई फायदा नहीं होने वाला है. बिकॉज राइट नाउ एवरीबडी इज गागा अबाउट बीएनएस, तो उसको मत टच करना. ओके, एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? ठीक है, चलो आते हैं चौथे क्वेश्चन पे. द इंटरपोल इज मैंडेटेड टू फैसिलिटेट वर्ल्ड वाइड. द इंटरपोल इज मैंडेटेड टू फैसिलिटेट वर्ल्ड वाइड पुलिस कोऑपरेशन एंड कॉम्बैट ट्रांसनेशनल क्राइम. ठीक है, हाउ डज इट सपोर्ट national governments in tackling the evolving nature of organized crime and terrorist activities? So let me just repeat this again. The Interpol is mandated to facilitate worldwide police cooperation and combat transnational crime. ठीक है, how does it support national governments in tackling the evolving nature of organized crime and terrorist activities? तो मेरा पहला ही जो पैरा होगा वो इंटरपोल को डिफाइन करने के लिए होगा कि भाई इंटरपोल है क्या. इट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इट इज व्हाट? इट इज द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन. नाउ उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद आई एम गोइंग टू राइट अबाउट व्हाट डज इंटरपोल डू. So, for example, you can write that it is an intergovernmental organization जहाँ पे sharing and access of data is done. अब कौन सा डेटा है? बेसिकली क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स का ही डेटा आता है जो मेंबर कंट्रीज के साथ शेयर किया जाता है. ओके, सो इंटरपोल इज बेसिकली फैसिलिटेट्स दैट फ्लो ऑफ डेटा शेयरिंग ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स. वो आपका इंट्रोडक्शन में आ गया. नेक्स्ट चीज जो आपको लिखना चाहिए, दैट इज योर इंट्रोडक्शन इटसेल्फ. द नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड राइट इज व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग. फर्स्ट स्टेटमेंट, अगेन मैंने क्या कहा था, उसका जो ग्रैंड थीम है उसका सिग्निफिकेंस बताओगे. क्या बोला है? फैसिलिटेट वर्ल्ड वाइड पुलिस कोऑपरेशन. कैसे ये वर्ल्ड वाइड पुलिस कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करता है? यार पहले ही वर्ड में मैंने बोला था शेयरिंग ऑफ डेटा, तो ऑब्वियस बात है डेटाबेस शेयरिंग की बात करोगे, इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात करोगे. दूसरा है आपका, आपने इतने सारे मूवीज देखा है राइट? क्या व्हाट इज दैट, आई यू नो वन ऑफ माय वेरी फेवरेट मूवीज, सलमान खान का मूवी है किक. इंटरपोल ढूंढता है उसके पीछे, तो उस समय पे एक डायलॉग आता है इंटरपोल के साथ, दैट यू नो इंडिया नीड्स योर सपोर्ट. तो इंटरपोल बोलता है वी आर देयर ऑन द ग्राउंड. इफ यू हैव वॉच्ड द मूवी, अगर आपने मूवी को वॉच किया है तभी you will understand the joke. But इंटरपोल को बहुत ही एकदम दिखाया है कि वो ऑन ग्राउंड सपोर्ट देता है वो. ठीक है, which is a reality. Movie cannot be a reality, but it is a reality that इंटरपोल ऑन ग्राउंड सपोर्ट देता है. उनकी एक रिस्पॉन्स टीम होती है जो कि ऑन ग्राउंड सपोर्ट देता है किसी और कंट्री के पुलिस को फॉर एनी क्राइम एंड क्रिमिनल. ठीक है, तो इंटरपोल का वो भी एक कोऑपरेशन रहता है फैसिलिटेट करने में, फैसिलिटेशन में. तीसरी चीज आती है कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग में. तो अलग अलग जो कंट्रीज के पुलिस को इंटरपोल काफी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम देता है. जैसे कि रिसेंटली श्रीलंका के पुलिस को दिया था. ठीक है, जब श्रीलंका में ईस्टर बॉम्बिंग्स हुई थी तो किस तरीके से डील किया जाए उसके लिए श्रीलंका के पुलिस को ट्रेनिंग दिया था इंटरपोल ने. तो ये उनके पास ये कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग का भी एक एलिमेंट रहता है. तो इन तीनों चीजें से आप बोल सकते हो कि वो वर्ल्ड वाइड पुलिस कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करता है. ये मेरा सेकंड पैरा होगा. तीसरा पैरा क्या है? क्वेश्चन ही क्या कहता है कि किस तरीके से वो नेशनल गवर्नमेंट्स को हेल्प करता है.
किस में हेल्प करता है? ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज में। तो सबसे पहला अगर मैं कॉन्क्रीट एग्जांपल दूं, वो आता है आपका कॉम्बैटिंग साइबर क्राइम में। ठीक है, उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है साइबर क्राइम। कोई भी, जैसे सुबह की क्लास में मैं एनोनिमस हैकर्स को लेके डिस्कस कर रही थी। ये जो एनोनिमस हैकर्स हैं जो मनी हाइस्ट के तरह एक मास्क पहन के आते हैं एंड एकदम क्रिटिकल जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अटैक करता है ये एनोनिमस हैकर्स। तो इंटरपोल ऐसे इंटरनेशनल एनोनिमस हैकर्स को पकड़ने के लिए हमें हेल्प करता है। दूसरी चीज जो कोऑर्डिनेशन के लिए हेल्प करता है वो है कि उनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। ठीक है, दे हैव क्राइम यूनिट्स काफी स्पेशलाइज्ड वाले, जैसे कि दे हैव क्राइम यूनिट्स फॉर अगेन देयर इज अ मूवी ऑन दिस, दैट्स व्हाई ऑन पेंटिंग एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चरल आर्टिफैक्ट्स के स्मगलिंग के ऊपर, राइट तो अगर किसी कंट्री का कोई आर्ट या कल्चरल आर्टिफैक्ट स्मगल हो रहा है, उसको रोकने के लिए उसके बारे में एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है इंटरपोल का। दूसरा ऑफ कोर्स काउंटर टेररिज्म का है। तीसरा आता है आपका इन्वायरमेंटल क्राइम्स को लेके या आपका साइबर क्राइम्स को लेके, तो ऐसे उनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, राइट। सो देयर इज अ फैंटास्टिक मूवी अगेन ऑन आर्ट एंड कल्चरल थेफ्ट, पियर्स ब्रॉसनन की मूवी है, काफी पुरानी मूवी है, कॉल्ड द थॉमस क्राउन अफेयर, बट इट इज एग्जैक्टली दैट कि भाई इंटरपोल आता है देखने के लिए किस तरीके से चोरी होता है। सो देयर इज अ स्पेशलाइज्ड यूनिट फॉर दैट। फाइनली जो और एक चीज इंटरपोल करता है वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने की कोशिश करता है। सो वहां पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस होती हैं एंड जो ट्रैफिकिंग के नेटवर्क्स हैं उनको डिसमेंटल करने की कोशिश की जाती है। तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैफिकिंग के नेटवर्क्स? यार कोई भी बंदा स्मगल करके ऐसे ही कंट्री से बाहर जाके उसको यूरोप नहीं लेके जाएगा जिसको स्मगल किया जा रहा है, उसको पूरा घुमा के कोई ले जाएगा फ्रॉम नेपाल से निकाल के वो कोई कजाकिस्तान होते हुए कहीं जाएगा। तो द प्रॉपर नेटवर्किंग दैट हैपेंस। कोई डायरेक्ट प्लेन में तो आप बैठा नहीं सकते हो ना, आप उनका पासपोर्ट इट्स डिफिकल्ट कि आप ओपनली उनको ट्रांसपोर्ट करो। तो इसी वजह से इट इज डन थ्रू अ ह्यूज सर्किटस नेटवर्क, और इस नेटवर्क को अगर आप तोड़ सकते हो तो इमीडिएटली आप काफी लोगों को बचा सकते हो फ्रॉम किडनैपिंग। जैसे कि अभी हाल ही में यू वुड हैव रियलाइज्ड दैट देयर वाज अ न्यूज about Indian people who were supposed to go to Middle East for working, ended up in Russia fighting for the war. In other words, there was this whole smuggling of people to fight Russia's war, और इंडिया से भी लोग गए हैं। Now in that case कोई ना कोई तो स्मगल किया होगा, और वो स्मगलिंग डेफिनेटली इंडिया से ही हुआ होगा, ऐसा नहीं है। लोग जा रहे थे मिडिल ईस्ट के जगह पे वो चले गए कजाक से एंट्री कर गए रशिया में, और रशिया में जाके वो वॉर लड़ रहे हैं। तो ये जो स्मगलिंग नेटवर्क है अगर इनको तोड़ा जाए प्रॉपरली इंफॉर्मेशन शेयरिंग के साथ तो काफी जानें बच सकती है। ठीक है, सो दिस इज वेयर इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ ये मेरा थर्ड पैरा रहेगा। कंक्लूजन में आते हैं। कंक्लूजन में मैं क्या बोलूंगी कि भाई इंटरपोल का जो इम्पोर्टेंस है वो आपको बाय द शेयर नेचर ऑफ इट्स वेरियस नोटिस सिस्टम, कैसे कि एक बार आई थिंक लास्ट ईयर के प्रीलिम्स में आया था ना इंटरपोल का क्वेश्चन, कौन सा नोटिस का कलर को लेके। तो अगर आप लिख सकते हो कि भाई ऐसे नोटिस सिस्टम है, ब्लू एंड रेड नोटिसेस, जिसके अंडर पे इट इंडिकेट्स द काइंड ऑफ इश्यूज इट डील्स विद, one can realize that it is dealing with a gamut of organized crime and terrorist activities. In this light, it is a requirement in today's global scenario where organized crime and terrorist activities as a non-traditional security threat is affecting most of the countries. तो आपने यहाँ पे इंटरपोल का जो इम्पोर्टेंस है उसको रिएटरेट किया, उसको समरी दे दिया कंक्लूजन में। तो ये अब अगर करोगे तो आपका आंसर का स्ट्रक्चर अगेन कंप्लीट होता है। दैट इज हाउ आई विल कंप्लीट दिस क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं।
several state governments have raised concerns over the increased policing power, okay, of the central armed police forces in matters of internal security. ठीक है? Comment on the issue of granting greater jurisdiction to the CAPFs. तो सबसे पहले ये बताओ, CAPF अकॉर्डिंग टू यू उनके पास ग्रेटर जुरिस्डिक्शन है क्या? सबसे पहले ये बताओ, डू द CAPFs हैव ग्रेटर जुरिस्डिक्शन? तो प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, इसको पहले समझते हैं, उसके बाद आंसर फ्रेम करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि जो पुलिसिंग है एज अ सब्जेक्ट, वो स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, वो स्टेट सब्जेक्ट है। अब यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि यूनियन गवर्नमेंट ने जो बॉर्डर फोर्सेस हैं उनका टेरिटरी 15 से 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया है, 15 to 50 किलोमीटर्स कर दिया है, जिसके वजह से नाउ व्हाट यू हैव इज जो मैटर पुलिसिंग था स्टेट सब्जेक्ट का, अब 50 किलोमीटर्स तक ये सारे सेंट्रल फोर्सेस के पास चले गए, which basically means that the state is now resisting, saying that हमारा jurisdiction पे यूनियन गवर्नमेंट आ रहा है, ठीक है। So that is where the concern is emerging कि CAPFs का jurisdiction बढ़ गया है। So under the BSF Act, under ये मेरा introduction रहेगा, under the BSF Act there is now a greater jurisdiction that has been given to the Central Armed Police Forces from 15 to 50 kilometers in states like West Bengal, Punjab, Assam and so on, ठीक है। अब ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। सेकंड मेरा क्या है, सेकंड मैं ये बोलने वाली हूँ कि भाई सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को कैसे ये किया गया है। तो जैसे कि एक बीएसएफ का बीएसएफ एक्ट है 1968 जहाँ पे ये बढ़ा दिया गया है। दूसरा है आपका सशस्त्र सीमा बल जो कि इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास है। नाउ दे हैव बीन गिवन द पुलिस पावर्स ऑफ द जो सीआरपीसी के पावर्स थे उनके पास है। उसके पास जो तीसरा चीज है वो ये है कि आपका जो सीबीआई या जो आईआरएस हैं उनके पास दे हैव द राइट टू इन्वेस्टिगेट ऑन इश्यूज दैट इज कमिंग इन दिस रीजन। जो 50 किलोमीटर्स का रेडियस है वहां पे अगर कोई कुछ इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा तो इनको पावर दिया गया है। तो इसके वजह से ये जो पुलिसिंग का पावर दिया गया है, जैसे कि बीएसएफ को दिया है, सशस्त्र सीमा बल को दिया है, आप सीबीआई को दे रहे हो, ये सारी चीजें क्या हो रही है, इट इज स्टेपिंग इनटू द स्टेट जुरिस्डिक्शन ऑफ पुलिसिंग व्हिच इज वेयर द स्टेट्स आर हैविंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये मेरा बिकॉज इट्स अ 15 मार्कर, पहले मैंने इसको इंट्रोडक्शन में समझाया क्या है सीएपीएफ, उसके बाद मैंने बताया कि भाई एग्जैक्टली क्या हुआ है बीएसएफ एक्ट और ये सारी चीजें मैंने सेकंड पैरा में समझाया। थर्ड पैरा में समझाने वाली हूँ कि भाई इसका बेनिफिट क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सटेंशन, क्यों दिया गया है ग्रेटर जुरिस्डिक्शन। तो अगर मैं ग्रेटर जुरिस्डिक्शन का बात करूं, सबसे पहली बात आती है कि भाई जो इवॉल्विंग चैलेंजेस आती हैं वो आज के दिन सिर्फ बॉर्डर सेंट्रिक नहीं है, आपको थोड़ा और एरिया जुरिस्डिक्शन में देना पड़ेगा। That is important because of the evolving challenges that are coming. For example, ड्रोन से weapons गिराना, ड्रोन से drugs गिराना, ये सारी चीजें एक पुलिस नहीं संभाल पाएगी। You need the border security forces there. उसके अलावा you also need to have a proper coordination agency, proper coordination amongst the border forces to stop these kind of new challenges. जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि बीएसएफ की बात करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करते हैं, उनके पास बेटर रिसोर्सेज हैं कि ये नए चैलेंजेस को प्रॉपर्ली रोक पाए, क्योंकि उनके पास
एक सेकेंड आदित्य, हाँ तो मैं वही बोल रही हूँ, पहले सेकंड वाला पॉइंट कोऑर्डिनेशन, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। कोऑर्डिनेशन पॉइंट ही ऑपरेशनल एफिशिएंसी रहेगा, क्योंकि उनके पास बेटर रिसोर्सेज हैं। तो आपके पास जब बेटर रिसोर्सेज है, यू विल बी एबल टू एफिशिएंटली मैनेज इट, आपका क्विकर रिस्पॉन्स रहेगा रादर देन पुलिस। इसी वजह से कोऑर्डिनेशन विल बी योर सेकंड पॉइंट। तीसरा जो रहेगा इज गोइंग टू बी यूनिफाइड कमांड सिस्टम, राइट? आपको ये नहीं करना है कि भैया किसी स्टेट को किसी मिनिस्टर से परमिशन लेके मैजिस्ट्रेट के पास जाके सारा कुछ करना है। यहाँ पे इट्स ऑल यूनिफाइड कमांड सिस्टम विच इज ट्रेन्ड टू हैंडल दीज काइंड ऑफ इश्यूज, इसी वजह से ये बेटर है। एंड दैट इज आदित्य योर थर्ड पॉइंट विच इज रिड्यूस ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, यहाँ पे वो बेटर होने वाला है। सो बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट इट, इट्स स्टैंडर्डाइजिंग द ऑपरेशंस फॉर बेटर रिस्पॉन्स। ये आपके बेनिफिट्स रहने वाले हैं व्हेन इट कम्स टू योर एक्सटेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन। अब चैलेंजेस, अब स्टेट की बात करते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट द स्टेट हैज? तो स्टेट का सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि भैया फेडरलिज्म का जो आइडिया है उसको आप और डाइल्यूट कर रहे हो, स्टेट सब्जेक्ट को और आप चैलेंज कर रहे हो। तो पुलिसिंग के ऊपर आप ऑलरेडी जब आप उसके पावर्स को रिड्यूस कर रहे हो, उसका जुरिस्डिक्शन कम कर रहे हो, यू आर चैलेंजिंग द नेचर ऑफ द स्टेट सब्जेक्ट्स। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और ऑलरेडी इसमें पंजाब ने केस फाइल कर रखा है इन सुप्रीम कोर्ट। दैट्स द फर्स्ट थिंग, जिसके वजह से क्या होता है कि सेंट्रल फोर्सेस और स्टेट पुलिसेस के बीच में टर्फ वॉर शुरू हो जाता है। They don't want to coordinate, they don't want to share information, they don't want to kind of come together to solve it, जैसे कि अभी मणिपुर में हो रहा था। You see a problem between the central forces and the state police, they don't like to come together and solve the issue। आप यहाँ पे टर्फ वॉर शुरू हो जाता है, ये सेकेंड पॉइंट आ जाता है। तीसरा प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है, अननेसेसरी मेडलिंग शुरू हो जाती है फ्रॉम द ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, स्पेशली इन लाइट ऑफ कि ये किसका जुरिस्डिक्शन है। टू प्रूव किसका जुरिस्डिक्शन है, यहाँ पे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स कम इनटू द पिक्चर। ऑटोमेटिकली दिस बिकम्स मोर एंड मोर पॉलिटिसाइज्ड, व्हिच देन लीड्स टू, जो हम इफेक्टिव एफिशिएंसी की बात कर रहे थे, यू नो क्विकर रिस्पॉन्स की बात कर रहे थे, वहां पे ये रुकावट होता है। नाउ ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये इसी वजह से हो रही हैं क्योंकि स्टेट की फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करती हैं। ये मेरा थर्ड पॉइंट है। अब बिकॉज मेरे को कमेंट लिखा गया है, मेरे को चौथे जो मेरा लास्ट पैरा है, मेरे को कहीं ना कहीं आई हैव टू गिव सर्टेन वे फॉरवर्ड, जहां पे मैं ये बोलूं कि ये प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूं। सो ये तो कंफर्म्ड है कि भाई CAPF का रहना इन दैट ग्रेटर जुरिस्डिक्शन अच्छी बात है, बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव मी एन ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये एकदम सही बात है। बट हाउ डू यू मैनेज द प्रॉब्लम्स कमिंग इन फ्रॉम द स्टेट पुलिस और द स्टेट गवर्नमेंट? इसके लिए यू वुड हैव टू कम अप विद अ जॉइंट एजेंसीज, जहां पे दोनों के साइड के रिप्रेजेंटेटिव्स रहे, and they are able to function with, they can coordinate better so that decisions can be taken। ये अगर आप नहीं करोगे तब कुछ नहीं होने वाला है। सो इंटर एजेंसी या इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन काउंसिल्स आपको बनानी पड़ेंगी ताकि ऐसी चीजों पे और बेटर कोऑर्डिनेशन हो पाए बिटवीन द स्टेट फोर्सेस एंड द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। ठीक है, सो this is going to be the way forward for you in this answer। समझ में आया है? Only Sani is like yes, okay, perfect Sani। Okay, so let me come down to the next question then। Gray zone warfare। Yeah, gray zone warfare, I have, a long time back, abhi nahi, but a long time back, I had actually written a research paper on the gray zone warfare। एक समय पे gray zone warfare was a very, very attractive research topic। ठीक है, तो it is reminding me of that era, if I have to put it this way। काफी अगेन आज के दिन इतना बात नहीं होता है, बट ठीक है। तो ग्रे जोन वॉरफेयर हैज बीन अ फीचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फॉर मिलीनिया।
while discussing the impact of China's grey zone tactics on India of the 21st century, also provide measures to mitigate the impact of such tactics. तो यार ये जो है grey zone warfare इतना पुराना है, so I said ना, इतना पुराना है कि एक era में मैंने खुद इस पे रिसर्च किया था. So that is that gives you the point that ये कोई भी अगर आप कंटेंट खोलते हो, मुझे नहीं पता आप क्या पढ़ रहे हो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, आपके पास नोट्स है, तो आई एम प्रिटी श्योर कि ग्रे जोन वॉरफेयर के नोट्स तो होंगे. ये फिर से वही क्वेश्चन है जिसमें रटा रटाया आंसर होना चाहिए. ठीक है. आर यू गाइज रीडिंग अ बुक ऑन इंटरनल सिक्योरिटी? कोई बुक रेफर कर रहे हो क्या आप लोग? एनी बुक दैट यू आर रेफरिंग फॉर इंटरनल सिक्योरिटी? ठीक है आदित्य. ओके परफेक्ट. बिकॉज क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो दे refer to one particular book on internal security and that book has not got updated since the last 3 to 4 years. तो इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि अगर वो भी बुक आप प्रेफर कर रहे हो तो उस बुक में भी लास्ट 3 से 4 साल पहले की जो रिटन बुक है उसमें भी आपको ग्रे जोन वॉरफेयर के बारे में वही सेम आंसर्स मिलेंगे. ठीक है. नहीं 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 आदित्य, नो 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 नो, यू डोंट हैव टू डू इट राइट नाउ. Is it that refer to your coaching? आप इस at this point of time coaching notes are enough. अभी तो एकदम नहीं, कोई बुक हाथ सोर्सेज अभी बढ़ाओगे नहीं, एकदम नहीं बढ़ाओगे. बट एक आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, बट मार्केट में तो आई लव टू गो टू कुमार बुक सेंटर इन ORN टू रीड बुक्स, पिकअप बुक्स. तो वहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी की सबसे ज्यादा जो बिकती किताब है वो पवनीत सिंह की किताब है. एंड वो किताब लास्ट 3 से 4 साल पहले की किताब है. सो इट हैज नॉट गॉट अपडेटेड. Now, IR and internal security are 2 subjects which you need to constantly update. Otherwise, वो कोई फायदा नहीं करने वाला है आपको. And that book has not got updated. So most people were still reading that book because it is considered to be a book जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है. मैं इसीलिए मैंने वही कहा कि अगर आप वैसी पुरानी किताब भी पढ़ रहे हो वहां पे भी आपको ग्रे जोन वॉरफेयर मिलेगा because it is one of those oldest kind of topics that is there. ठीक है. Anyway, let me come down to what Aditya has written as introduction. क्या है आदित्य का statement? Defined as actions that fall between overt military aggression and routine statecraft. Example, China's 2020 incursion in eastern Ladakh exemplifies grey zone tactics against India. Done है. Done है. तो मैं यहाँ पे आदित्य, what I will write to define grey zone as, I will say it is the use of non-traditional methods to achieve strategic objectives of a state, which is basically what China is trying to do. ये irregular warfare में देखा जाता है and that you are right, but this is the words I'm going to use. Irregular warfare, I will use non-traditional methods. These are certain things that I'm going to write in my introduction or the conclusion. Okay, that is my introduction because मैंने grey zone warfare बता दिया क्या है. जो मेरा next होगा वो है कि grey zone warfare का impact क्या है on India. ठीक है. तो impact क्या है कि यार we are having constant incursions and border skirmishes in the LAC region, especially in the eastern and the western sectors. ठीक है. तो कांस्टेंट वो आपका टक 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 चलता ही रहता है, बॉर्डर स्कर्मिशेस चलती रहती हैं, चाहे आप लद्दाख के रीजन की बात करो या अरुणाचल प्रदेश की रीजन की बात करो, तवांग 2022 की बात करो. इट्स अ कंटिन्यूअस बॉर्डर स्कर्मिशेस जो होती रहती हैं. दीज बॉर्डर स्कर्मिशेस आर बेसिकली बेस्ड ऑन ग्रे जोन टैक्टिक्स. सेकंड जो है आपका जो
under the BRI pretext, having the CPEC passing through the illegally occupied Kashmir is definitely a grey zone tactic. ये definitely हमें impact कर रहा है because it is passing through India's, it is at the end of the day, it is illegally occupied by Pakistan. And by building that CPEC, you are legalizing or legitimizing a illegal occupation. That is a grey zone tactic. It is, so grey zone क्या मतलब क्या है? आप इतना aggression कर रहे हो, इतना provoke कर रहे हो कि वो war नहीं हो रहा है, but आप provoke करे जा रहे हो. It is like, जब आप किसी से रास्ते पे जा रहे हो, उसको कंधे से कंधा मारा या उसको धक्का मारा, इतना तक आप उसको वायलेंस कर रहे हो कि वो गुस्सा जरूर हो रहा है पर उसने रिटेलिएट नहीं किया, तो वॉर नहीं शुरू हो रहा है बट आप वहां तक उसको पॉइंट ब्लैंक उसको धक्का मार रहे हो. तो ये जो अग्रेशन होता है ये चाइना ने एकदम एक्सीलेंट फॉर्म में लेके चला गया है वो. तो चाहे आप बॉर्डर स्कर्मिशेस की बात करो, वहां पे बॉर्डर स्कर्मिशेस आर नेवर टर्न्ड इनटू अ वॉर. वो खिटपिट चलता रहता है बट इट्स एन इरिटेंट. उसके वजह से वी हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप आवर फोर्सेस ऑन अलर्ट जोन. दूसरी चीज क्या है? सीपेक, एक इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी को लेजिटिमाइज कर रहे हो जो टेक्निकली इंडिया का है, सो दैट इज ऑल्सो ग्रे जोन वॉरफेयर. तीसरा आ जाता है आपका जो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात करें या जो अभी म्यांमार का कोको आइलैंड है वहां पे चाइना का बेस बनाना, या जो रिसेंट टाइम्स में पता चल रहा है कि चाइना इज ऑल्सो हैविंग मोर एंड मोर स्पाई शिप्स नियर श्रीलंका. These are nothing but grey zone tactics. आप यहाँ पे ग्रे जोन टैक्टिक्स के थ्रू ही इंडिया को वो सिक्योरिटी डायलेमा में फंसा रहे हो. सो दैट इज द अगेन अ ग्रे जोन टैक्टिक. उसके अलावा वी कैन टॉक अबाउट चाइना का वीटो पावर यूज करना हमेशा इंडिया के अगेंस्ट, या चाइना का डेट ट्रैप पॉलिसी इन इंडिया, चाहे वो आप नेपाल बोलो, चाहे अभी बांग्लादेश बोलो, चाहे आप श्रीलंका बोलो, पाकिस्तान बोलो, पूरा नेबरहुड को डेट ट्रैप में फंसा दिए हो. तो इंडिया का जो नेबरहुड है आज के दिन पूरी तरीके से चाइना की बात सुनता है. सो ऑल ऑफ दिस इज अ ग्रे जोन टैक्टिक ऑफ चाइना विदाउट engaging in an outright war. ठीक है? So that is the impact of China's grey zone tactics. अब इंडिया ने क्या किया है इसको बैलेंस करने के लिए? इंडिया ने सबसे पहले तो अपना जो स्ट्रैटेजिक टाइज है उसको बेटर किया है. अभी हम और चुप नहीं रहते हैं. हर बार चाइना ऐसा कुछ अग्रेशन करता है हम इंटरनेशनली जाके बोलते हैं. So we have started talking about these grey zone tactics of China in international प्लेटफॉर्म्स. बी, हमने अपने स्ट्रेटेजिक टाइज इंप्रूव किए हैं विद रशिया, विद साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज विद यूएस, जिसके वजह से हमारे आज के दिन वी हैव बेटर अलाइज देन चाइना डज. तीसरा, हमने अपना मैरीटाइम पावर बढ़ाया है. बिकॉज वी हैव इंक्रीज्ड अवर मैरीटाइम पावर अंडर सागर, it is now we are now able to counteract these tactics. जैसे कि म्यांमार का जो आइलैंड है कोको आइलैंड में चाइना ने बेस बनाया है, इमीडिएटली हमने यूएस से MQ-9B गार्जियन ड्रोन्स का ऑर्डर दिया है. क्यों? क्योंकि ये सी ड्रोन्स हैं. These are meant for long distance maritime surveillance. और हम from the Nicobar Islands we'll be able to surveillance the entire Bay of Bengal. So we are also challenging these kind of tactics in our own way. And the last point is we are engaging in strategic alliances जैसे कि Quad, I2U2, ASEAN के साथ better relations. So all of this is basically strategic alliances to counteract this grey zone warfare of China. फाइनली अगर मैं इसका रिस्पॉन्स मतलब कंक्लूजन में आऊं तो कंक्लूजन में यही रहेगा कि ये दिस टैक्टिक चाइना डज नॉट जस्ट डू विद इंडिया बट विद अदर कंट्रीज ऑल्सो, एंड इट इज अ टैक्टिक दैट हैज टू बी रिस्पॉन्डेड rather than ignored. For a long time India had ignored these tactics, thinking or believing that it is better to be strategically silent. However, in recent times India has started answering these tactics in a more strategic manner. For example, the Reaper drones, which then kind of, pushes China not to engage in this grey zone warfare. Basically, जब तक आप इग्नोर करोगे ना, वो करता ही रहेगा. एक बार उल्टा जवाब दे दिया ना वहां पे, वो बंद हो जाएगा. वही चीज हमने आज तक नहीं किया है.
बट इट इज टाइम दैट वी रिस्पॉन्ड टू द ग्रे जोन वॉरफेयर. ये अवॉइडेंस को हटा के एक अग्रेसिव स्टांस लेना चाहिए हमें. इतना जो ये लोग मैप का गेम खेलते रहते हैं, हाई टाइम वी से कि ताइवान इज अ यू नो अ गुड फ्रेंड ऑफ अस. रिलेशन एस्टैब्लिश कर लेना चाहिए हमें ताइवान के साथ. तो ये जो ग्रे जोन वॉरफेयर का ये जो टैक्टिक्स रहता है ना, उसी को वहीं पे जवाब देके खत्म करना है हमें. इनफ ऑफ दिस कंटिन्यूएशन ऑफ ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स. So you can conclude in a more aggressive stance on this matter. It is acceptable. That is what is important. Acceptable क्यों है कि आज के दिन में इंडियन गवर्नमेंट का भी स्टांस वही है. It is acceptable to be aggressive when it comes to dealing with the gray zone warfare tactics of China. ठीक है? So that is how you can write this question. और ये इस क्वेश्चन में तो मतलब दिल खोल के लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay. Coming to the question, last question that I'm going to discuss with you, the theaterization of commands is vital to fight future wars. Discuss the limitations and measures taken towards the theaterization of the Indian Armed Forces. अब ये जो है ये question आया, मतलब again it's a question of a time जब Bipin Rawat ji was the chief of the defense and chief of army staff. And उस समय से ये थिएटराइजेशन पे बात चल रही है. एंड थिएटराइजेशन हैज बीन इन डिस्कशन फॉर अगेन लॉन्ग टाइम. ये भी रटा रटाया क्वेश्चन है, कोई भी करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन नहीं है ये. ओके, सो इफ आई हैव टू राइट दिस, मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या करूंगी, थिएटराइजेशन ऑफ कमांड्स को एक्सप्लेन करूंगी कि क्या है. इट इज अ एम टू इंटीग्रेट आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स फॉर ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस. ये चीज मैं इंट्रोडक्शन में लिख दूंगी. द सेकेंड मेरा जो पैरा रहेगा वो ये रहेगा कि भाई थिएटराइजेशन ऑफ कमांड का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या रहने वाला है, क्यों किया जाए, उसको मैं एड्रेस करूंगी इन द सेकेंड पैरा, जहाँ पे आई विल टॉक अबाउट कि भाई यूएस में ऑलरेडी कमांड सेंटर्स हैं और चाइना ने भी ये करके रखा है, इसी वजह से ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ा हुआ है. सो इंडिया शुड आल्सो डू इट. सेकेंडली, हमारे यहाँ पे भी कई कमिटीज ने रिकमेंड किया है, जैसे कि कारगिल रिव्यू कमेटी ने भी बताया था. एंड थर्ड, अगर हम देखते हैं कि जब हम अगर हम देखते हैं जैसे कि बालाकोट एयर स्ट्राइक ऑपरेशन हुआ था, या जो जब भी कोऑर्डिनेटेड अप्रोच चाहिए होता है वहां पे ये थिएटर कमांड्स की जरूरत पड़ती है. ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं कि इससे माने व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ थिएटराइजेशन. ये मेरा सेकंड पैरा होगा. बट यहाँ पे क्या पूछा है, डिस्कस द लिमिटेशन. दैट मीन्स मेरा जो थर्ड पैरा है वो लिमिटेशन पे आ जाएगा. लिमिटेशंस क्या क्या है, एसेट डिवीजन विल बी अ प्रॉब्लम. एसेट डिवीजन मतलब क्या है कि आप जब एसेट्स मतलब हेलीकॉप्टर्स डिवाइड करोगे बिटवीन नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी, उस समय पे थिएटर्स में कितना किसको मिलेगा वो आपको पता नहीं है. तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसको डिफरेंट थिएटर्स में डिवाइड करने में देयर इज अ पोटेंशियल कि किसी एक मिलिट्री ब्रांच को एग्जैक्ट नंबर्स ना मिले जो उनको जरूरत है. सो दैट इज द रीजन व्हाई दे आर अफ्रेड ऑफ एसेट डिवीजन. दूसरी चीज है जुरिस्डिक्शन, कि भाई किसका कौन सा जुरिस्डिक्शन है इन द थिएटर कमांड, राइट, इन द थिएटराइजेशन. एंड द थर्ड इज कौन लीडर बनेगा, कोई आर्मी का बंदा या एयरफोर्स का या नेवी का, हु इज गोइंग टू लीड दैट इंटीग्रेटेड थिएटर सिस्टम. दैट इज वेयर द लिमिटेशन और द वेयर द प्रॉब्लम इज कमिंग. सो एसेट डिवीजन, आपका लीडरशिप प्रॉब्लम, एंड द थर्ड इज जुरिस्डिक्शन. ये तीन चीजें प्रॉब्लम होती हैं जब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ थिएटराइजेशन पे. फाइनली जब हम बात करते हैं कि भाई मेजर्स क्या लिए गए हैं, इंडियन मिलिट्री में क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं फॉर थिएटराइजेशन, तो सबसे पहला आपका आएगा सीडीएस का, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. सीडीएस का जो पोजीशन था वो इसीलिए लिया गया था ताकि देयर विल बी अ सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइस टू द गवर्नमेंट. ठीक है, तो सीडीएस का पोजीशन वाज अ स्टेप टुवर्ड्स थिएटराइजेशन. उसके बाद अगर आप देखते हो तो ट्राई सर्विस कमांड है. ट्राई सर्विस कमांड कहाँ पे है, आपका अंडमान निकोबार कमांड जो है वो ट्राई सर्विस है. तो ट्राई सर्विस कमांड्स आपको ऑपरेशन के लिए दिए गए हैं, अगेन अ स्टेप टुवर्ड्स थिएटराइजेशन. इंटर सर्विसेज कमांड्स हैं जहाँ पे आपका कमांड कंट्रोल डिसिप्लिन वो भी है आपके पास. क्रॉस पोस्टिंग्स होती हैं, राइट.
ये सारी चीजें आपके मेजर्स हैं टुवर्ड्स थिएटराइजेशन. नाउ this is where my conclusion will actually come to General Bipin Rawat, who was India's first CDS, and he was, he really wanted to push theaterization. He said that theaterization जो है वो बहुत important है इंडिया के लिए, क्योंकि India is now looking at a war which is going to be two front. सिंगल फ्रंट पे वॉर नहीं करेगा बल्कि मल्टीपल फ्रंट पे वॉर करेगा. इट कुड बी दैट इट कुड बी नॉट ओनली टू land front but also land and water front we can also open up. जब multiple fronts में war करना है तो single command structure होना easy रहेगा, efficient रहेगा. So his argument was that with the changing nature of war, theaterization of armed forces is a must. तो मेरा जो conclusion रहेगा वो यही रहने वाला है. I will come down to the statements given by Bipin Rawat ji on this point. ठीक है. तो मैं ये क्वेश्चन को इसी तरीके से आंसर करूंगी. अब मैं अगर क्वेश्चन नंबर 7 या 6 की बात करूं, ये फिर से रटा रटाया क्वेश्चन है. इट इज अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन. इसके आंसर्स आप खुद पहले से लिख के रख सकते हो जिससे कि इट बिकम्स इजियर. ठीक है. सो दैट इज हाउ आई विल राइट. एंड या इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस राइट नाउ फील फ्री टू आस्क देम. कोई भी अगर क्वेश्चन है या आपको कोई you want to have some discussion, I am right here. वरना अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, please carry on with your studies. From my side, best of luck. ठीक है. Matter of few days guys, make it count. That's it. जितना आंसर लिख सकते हो लिखो, and जितना आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे वो बेटर है. हाई कैनेडी लिमिटेशंस पे, लिमिटेशंस इज डिविजन ऑफ एसेट्स, सेकंड इज योर जुरिस्डिक्शन एंड थर्ड इज लीडरशिप. दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ थिएटराइजेशन कि कौन लीडरशिप रहेगा थिएटर कमांड्स का, जुरिस्डिक्शन कौन से ब्रांच का कहाँ पे रहेगा, और पहला वाला है एसेट्स कैसे डिवाइड होंगे थिएटर्स के बीच में. तो ये आपके लिमिटेशंस हैं थिएटराइजेशन के. Any other question? Anything you want me to explain? कुछ चीज मुझे अगर आपको एक्सप्लेन करना है या कोई भी क्वेश्चन है. Assets in this answer would be helicopters. एयरफोर्स को बहुत डर है कि the helicopters will be taken from Air Force and given to Army and Navy for use. So the kind of asset division is where they are all worried about. शिवम, मैंने अभी क्लास के बिगिनिंग में ही शोभित से बात किया था. शोभित ने कहा है कि आज रात तक हो जाएगा. IR के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं. DAWs आपको इंटरनल सिक्योरिटी के आज रात तक मिल जाएंगे. आई थिंक आपके सारे कोर पेपर्स तो हो चुके होंगे, सारे MRP के सारे DAWs डिस्कशन तो हो ही गया होगा. सो नाउ दैट यू आर डन विथ योर कोर, इट्स ओनली द स्मॉल सब्जेक्ट आर रिमेनिंग. IR एंड इंटरनल सिक्योरिटी भी हो गया है. आई थिंक अभी जो बाकी रहेगा साइंस एंड टेक एंड ऑल ऑफ दोस विल बी रिमेनिंग. तो उनको ढंग से करने के बाद यू आर ऑल सेट देन फॉर द एग्जाम. Anyway, because I'm not getting any response. मैम ने क्या के में चुनाव करना अभी अच्छा है? क्यों नहीं? अभी क्यों? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? करना चाहिए भाई, एब्सोल्युटली करना चाहिए. आई थिंक इट्स हाई टाइम वी डू इट. इट्स अ गुड मूव दैट वी आर गोइंग टू मेक. ये जरूरी है इसको करके नॉर्मलाइज करना. एंड चाहे जो भी कोई ऑपोजिशन वाले या कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज इस पे बताए कि मूवमेंट ऑफ द पुलिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, बट दैट हैज ऑलवेज बीन द केस जहाँ पे यू वांट टू, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर इज सच अ सेंसिटिव एरिया कि आपको नेटवर्किंग तोड़ के आपको नए लोग लेके आके करोगे तो वो हमेशा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत आसानी से एस्टैब्लिश्ड करप्शन हो जाता है. तो आपने वो लिंक्स तोड़ा है, नए लोगों को बैठाया है, एंड नाउ यू गोइंग टू हैव इलेक्शंस. तो प्रॉब्लम क्या है? एब्सोल्युटली करना चाहिए ये. तो इलेक्शंस को इससे डरने का कुछ नहीं है. ओके,
If there are no more questions, तो मेरे तरफ से best of luck, guys. If you have any doubts, feel free to connect with me on Telegram. कोई भी doubt है, again, as usual, I'll be more than willing to help you. And अच्छे से लिखना, anxiety को control करके लिखना. I wish you all the best. And I'm hoping to meet you in the interview guidance program now. So I will be there in the panel. उस समय पे बात करते हैं. Then we'll talk about all these questions that you have. Till then, best of luck and yeah, prepare well, work hard. दिल्ली की तरह LG होगा या स्वतंत्र राज्य होगा? At this point of time तो LG की बात नहीं हो रही है यार. So it is being treated as a proper state right now. Okay, chalo, bye. Take care. Bye, Jitendra. Bye. Kennedy. Bye, Saini. Bye, Shivam. Bye, Aditya. Bye, Monica. Good night. And please, yeah, do your best. I need to see you guys in interview guidance program. Bye.